मेरे से यहाँ पर आतिका मैडम मौजूद है। यहाँ पर आतिका मैडम से मालूमात करने की कोशिश करते हैं कि जो है आज इस साल 2025 में कितने स्कूल के लड़के जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आज क्या टॉपिक दिया है उसके ताल्लुक से कुछ मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हम लोग ABRR क्रिकेट ग्राउंड में हैं और MPSF इन कोलैबोरेशन विद द चिल्ड्रंस फाइन आर्ट गैलरी। तो हम लोग हर साल, दिस इज आवर 4th एडिशन नाउ, so every year we pick up a new artist, a international very prominent artist of the world, and then we try to make the children learn about him. Though it is a one day activity, but yet the entire activities are based on the artist work. So this year's artist is Yayoi Kusama. She is a Japanese artist but stays in the USA. She is prominently known for making dots. Now there's a story behind her work also. As a child, she grew up in a farm where her parents were cultivating seeds and were selling the seeds. So she used to go to those lush farms and lie down and look at the flowers and also the seeds that were around her. And at a particular point of time, all the seeds and the flowers appeared like dots to her, and she used to interact with them. I believe she used to have a dialogue with them. The seeds started talking to her. That is the communication that she has, and she's built over those dots. And how many schools participated this year? There are 21 schools that have participated, and they are all how from many students? Yes, there are around 3,000 and odd students. Then we had a first round. We finished selecting children from the first round, and then got around 400 children here on the grounds. So it's an open space, and we are having a lot of fun over here. There are three. What about the balloons? This I'm seeing the first time in the balloons. What kind of balloons? Yeah. So we had we were focusing on the dots. So there's also an installation that I'm always interested to make it more interactive. Apart from painting and all, we also do installation that is interactive in the sense the balloons that we pick. Once you blow up the balloons, they start appearing like dots. That's the whole idea. So every child got an opportunity to blow up balloon, and you can also see in the videos how the balloons started appearing like dots. That's the communication that we have made there. And then we also have lot of works being displayed over here. Yes, and around 15 works, and we gave the chance, the option to the children to pick up one work which they like, and they have to recreate the same thing. The idea behind recreation is to make the child observe the work properly and more focused. So the gallery believes in museum education, and that is how we have trying to do work and integrate the the learning process of creating art, and then how to integrate it with other subjects like science, social, mathematics, and that is the way it make it more easier for in the academic world also. मैडम, यहाँ ग्राउंड पर लाने की क्या वजह है बच्चों को? ये स्कूल्स में भी करा सकते थे, तो यहाँ पर ग्राउंड पे क्यों लेकर आने? हर साल की तरह इस साल भी जो ग्राउंड पर लेकर आके इन लोग को जो है पार्टिसिपेट करा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हाँ, क्या सोच कर लेकर आ रहे हैं? या द होल आइडिया इज, देखिए ये स्कूल जो ओल्ड सिटी में है, थोड़ा प्लेसेस की प्रॉब्लम रहती, ओपन स्पेसेस नहीं रहते वहाँ पर. तो फॉर द फर्स्ट थिंग that we suggested was come out, and I should appreciate all the school owners. They're all very learned persons, and they promptly agreed to the idea, and each we have made ABRR cricket ground as our venue where in the open air under the blue sky we could learn and enjoy doing art over here. It's a picnic come learning. Yeah. मैडम, ये भी देखा गया कि डॉट्स की आप अम्ब्रेला लेकर आए हैं. आप जो सूट पर भी और दुपट्टे पर भी जो है डॉट्स लगाए के आए हुए हैं, उसके ताल्लुक से मालूमात करिए. डॉट्स का क्या राज है मैडम इसके ताल्लुक से? हाँ, तो क्योंकि आज के जो आर्टिस्ट है यायो कुसामा, डॉट्स से ही हर चीज बनाते थे. अगर आप एक स्टिल लाइफ बनाना है, आप घर से देखिए, आप बताइए भी अपने व्यूअर्स के लिए भी पेंटिंग्स थोड़े बताइए, तो डॉट से ही कंप्लीट करे हैं वो पूरा. मुख्तलिफ किस्म के है, सॉरी खत्म कर दिया, सॉरी जी. ब्लैक एंड येलो के डॉट्स बनाए कहीं पर कुसामा जी ने,
and in some cases she made like still life with very colorful dots. So हम लोग मतलब आज तो मतलब we have all displayed all different types of colors of balloons also, and we are also dressed up like the way she had used in for her costumes also. So thank you very much. ये थे आतिका मैडम जो कि इस इवेंट के जो करता धरता यहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे, और भी जो है स्कूल के करस्पॉन्डेंट भी मेरे साथ रहेंगे, उनसे भी कुछ मालूमात करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं करस्पॉन्डेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर जो गाजी सर है स्कूल के जो करस्पॉन्डेंट हैं, यहाँ पर उनके बच्चों को लेकर यहाँ पर ग्राउंड पर आए हुए हैं, ABR ग्राउंड पर पार्टिसिपेट करने के लिए। कैसा दिखा सर आपको यहाँ पर बच्चों को लेकर आए हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बेनतिहा फज़ल करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे तालीम के शोबे से वाबस्ता फरमाया, जहाँ पे हम बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। और तालीम का शोबा आज जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और जो बच्चों को लर्निंग के जो डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं, उस मुनासिबत से उस हिसाब से ये आर्ट एंड क्राफ्ट या आर्ट का एक ऐसा मजमून है जो बच्चों में इख्तिराई सलाहियतों को बेदार करता है, पैदा करता है, और जो नई सोच जो बच्चों में होती है वो आगे निकल के आती है। तो इसी प्लान से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से 5 साल से हम लोग रेगुलर हर साल पार्टिसिपेट कराते हैं बच्चों को। तकरीबन 2500 3000 बच्चे, तकरीबन 30 स्कूल 35 स्कूल से बच्चे हिस्सा लेते हैं, जिसके 2 हम सेशंस रखते हैं, एक इंटर स्कूल रखते हैं, एक इंटर स्कूल रखते हैं। इंटर स्कूल से जो सिलेक्टेड बच्चे हैं यहाँ पे ग्राउंड पे लाते हैं ताकि बच्चों के बैरूनी माहौल मिले, अच्छा माहौल मिले, एक साजगार जहाँ पे बच्चे इंजॉय कर सकें, लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और अपनी सलाहियतें और ज़्यादा उसको निखार सकें। सर ये भी देखा गया है कि अक्सर स्कूलों में जो है स्पोर्ट्स के नाम पर जो है क्रिकेट वगैरह खिलाते हैं और भी कुछ लेकर आते हैं, दूर दूर तक भी ले आते हैं। आपने खास तौर से इस कंपटीशन के लिए दूर से यहाँ तक आए, सिर्फ कंपटीशन आर्ट कंपटीशन के लिए, इसकी क्या वजह है? देखिए, बच्चा जब स्कूल में होता है, अभी हम देखते हैं ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा पुराने शहर के स्कूल्स की। मैं तो चाहूँगा शायद नए शहर के स्कूल भी ऐसे ही हों कि आज के स्कूल ग्राउंड के बगैर हैं। स्कूल तकरीबन छोटे छोटे स्कूल्स हो गए हैं, 300 गज पे 400 गज पे स्कूल बने हैं, जहाँ पे तमाम के तमाम क्लासरूम्स हैं। ग्राउंड की कमी है, तो हम ये चाहते थे कि भाई कि ग्राउंड पे बच्चों को लाएं ताकि एक बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, खुशगवार माहौल मिले, अच्छा मौका मिले, ताकि बच्चे, क्योंकि माहौल, देखिए माहौल से इंसान की सलाहियतें बेदार होती हैं। क्लास में बंद दीवारों में बैठ के करेंगे, उनका एक अलग जहन होगा, लेकिन खुली फिजा में अगर वो लोग काम करेंगे तो उनका एक अलग जहन होगा, जो अंदर छुपी हुई सोई हुई सलाहियतें जो हैं वो उजागर होती हैं, बेदार होती हैं। उस मकसद के तहत हम चाहते थे कि भाई ग्राउंड को ढूंढें। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है, मैं समझता हूँ कि हमारे संतोष नगर से अगर देखें तो 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर ग्राउंड है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। आप देख सकते हैं ग्रीनरी वगैरह कितनी है यहाँ पे, इस वजह से हम यहाँ पे ले। और एक बात कहूँगा कि स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं, बराबर, स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं, स्पोर्ट्स का मतलब यह है कि बच्चों में एक, क्योंकि एक हेल्थी, मेरा जो एक स्लोगन है, मैं जो अक्सर कहता हूँ कि हेल्थी बॉडी हैज अ साउंड माइंड। एक सेहतमंद जिस्म एक बेहतरीन दिमाग को रखता है, अच्छे ताकतवर दिमाग को रखता है। तो जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए स्पोर्ट्स होना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेट हो। स्पोर्ट्स के लिए कोई भी हो सकता है, ये भी एक किस्म का एक स्पोर्ट हम कह सकते हैं। बच्चों को यहाँ पे लेके आए ताकि बच्चे यहाँ पे ड्राइंग के साथ साथ बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका जिस्मानी जो नशोनुमा है वो बेहतर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर जो है शफी सर है, मुनाफ हाई स्कूल के करस्पॉन्डेंट, ये इनके स्कूल भी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आइए उनसे मालूमात करने की कोशिश करते हैं ABR ग्राउंड पर यहाँ पर उनके स्कूल के लड़के कितने आए हुए हैं, कौन सी क्लास के आए हुए, उनसे मालूमात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये बताइए आपके स्कूल से कितने बच्चे आए हुए हैं अभी? टोटली जो है हमारे ये स्कूल से जो है 117 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसके अंदर जो है सेकंड राउंड में, इस राउंड में ABR ग्राउंड में 23 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर मौजूद है, जो सेकंड राउंड में सेलेक्ट होकर आए थे। सर ये जो कंपटीशन स्कूल में होते हैं या फाइनल यहाँ पर होता है, क्या प्रोसीजर है इसका? ये जो है 2 ग्रुप्स में होता है। फर्स्ट इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है और ये इंटर स्कूल है यहाँ पर ग्राउंड में। इंट्रा स्कूल के विद इन 4 वॉल्स ऑफ द स्कूल ही होता है। वहाँ पर पूरे टोटली जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से जो बेस्ट ऑफ द आर्ट डिस्प्लेड वर्क है, बच्चों का जो स्किल्स डिस्प्ले होते हैं, वो बच्चों को जो है सेकंड राउंड में ग्रैंड फिनाले में चांस मिलता है, जो कि आज यहाँ पर हो रहा है। तो आज का जो फाइनल जो जीतेंगे, विनर जो रहेगा, उसको क्या इनाम दिया जाएगा? उसको क्या बोल के मतलब कब दिया जाएगा या अमाउंट दिया जाएगा, क्या इनाम? और यहाँ के आज के खुसूसी मेहमान कौन रहेंगे? जी,
एक्चुअली क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन का इस तरीके से है, 20% ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्राउंड में आने के बाद ग्रैंड फिनाले में जो बच्चों का बेस्ट ऑफ द स्किल आर्ट वर्क रहता है वो लोगों को जो है यहाँ पर एनकरेजमेंट के तौर पर गोल्ड मेडल दिया जाता है, इसके साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाता है उनको, और जो बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सिल्वर मेडल दिया जाता है जो स्कूल के अंदर ही उन लोगों को जो है छोटा सा फंक्शन करके वहाँ पर स्कूल में दिया जाता है ताकि बच्चों को एनकरेजमेंट हो। और आज जो है आज के मेहमान खुसूसी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब MLA चिमरान गुट्टा एंड चीफ पैटर्न ऑफ मजलिस प्राइवेट स्कूल्स दैट इज MPSF के जो है चीफ पैटर्न भी है, उनकी क़यादत में जो है ये MPSF फॉर्म हुआ था और आज के मेहमान उन्होंने देखना है अभी आफ्टरनून का उनका टाइमिंग है, उनकी मसरूफियत की बिना पर आज वो शायद आ जाएंगे तो उनके हाथों जो है बच्चों को अवार्ड और क्या बोलना चाहिए मेडल्स, गोल्ड मेडल्स और सर्टिफिकेट्स उन लोगों को दिए जाएंगे उन लोगों को। इसके साथ ही साथ हर स्कूल के टॉप 4 बच्चों को विनर, रनर अप 1, रनर अप 2, रनर अप 3 जो है उनको अलग से जो है वो दिए जाएंगे। इसके साथ गैलरी से भी जो है जो बच्चे का एकदम बहुत ही इन डेप्थ इन्वॉल्व स्किल्ड आर्ट डिस्प्ले होगा उनके लिए क्रिटिक अवार्ड्स भी दिया जाएगा जो चिल्ड्रंस फाइन आर्ट गैलरी की तरफ से होगा। नाज़रीन, ये थे शफी सर के बहुत अच्छी बातें बताई है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो है बच्चों को स्कूलों से यहाँ तक लेकर आना, बस में पेरेंट्स को एग्री कराना, यहाँ तक ग्राउंड तक पहुँचाना बहुत बड़ी बात होती है। ये हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ये कंपटीशन कामयाब रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा आदिल भाई कि हम पेरेंट्स को एक ख़ास चीज़ हम उनको ये बताना चाहेंगे। आज के दौर में, मौजूदा दौर में जो है इस तरीके का दौर है राइट्स का, चाइल्ड राइट्स का, वुमेंस राइट्स का और जो है हर तरीके के राइट्स का दौर है और बच्चों को जो है सख्ती बरत के उनको सिखाया नहीं जा सकता। पहले 1-2 चीज़ें बड़ों से सुनने में आती थी, बच्चों को सीखने के लिए, काबिल बनने के लिए डर या शौक़ दोनों होना है, लेकिन आज का दौर इस तरीके से हो गया बच्चों को जो है डरा नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनको मोटिवेशन होना है और उनको एकेडमिक एक्सेलेंस की तरफ लेके जाना है। तो इस तरीके से हम समझे कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बच्चे के 5 सेंसेस कम्प्लीटली इन्वॉल्व होते हैं जब कोई एक क्रिएटिव सेंस वो लेके बैठता है, और इसी के साथ बच्चा जब करता है तो उसके अंदर उन्हीं सलाहियत, पेशेंस, क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस, करेज एंड कमिटमेंट बच्चे का जो होता है ना, ये इसको जो है आने वाली ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में जो है काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यानी कोई मकसद इंसान के सामने अगर हो तो उसको जो है अंदरूनी जो कैफियत होनी है बच्चे को या बड़ों को जिसको होनी है, जिसके ज़रिए वो एक बड़े माइलस्टोन को टच कर सकता है, काबिल तरीन और अपनी महारत मनवा सकता है इन तमाम बच्चों के दरमियान में या बड़े कंपटीशन के अंदर। आज हमारे यहाँ पर जो है तकरीबन 550 बच्चे यहाँ पर सेकंड राउंड में मौजूद है। टोटली जो है हमारे ओवरऑल इस साल के 2025 MPSF आर्ट कॉन्टेस्ट के अंदर करीब जो है 2600 बच्चे जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करे हैं। ओके, तो इस तरीके से हर साल जो है करीब 2000 और 3000 के दरमियान में बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम जो है करीब 22 से 27 स्कूल्स को जो है कनेक्ट करे हैं जिसके बच्चे जो क्या है जो है इसमें पार्टिसिपेट करके, और ये देखा जा रहा है कि इनकी जो है जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते हैं ना, इनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से और फोकसनेस और कंसंट्रेशन बढ़ने से उनके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जो है उनकी स्कोरिंग बेटर हो रही है और बच्चे क्या है तवज्जो देना सीख रहे हैं और क्या बोलना है कोई चीज़ को ग्रास्प करना, जल्दी से जो है जहन नशीन करना, ये चीज़ें जो है आर्ट के ज़रिए उनको जो है हमारी जानिब से MPSF की जानिब से एज ए स्कूल लीडर जो है हम तमाम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है इंटरनली डेवलप हो और उनकी सलाहियतें जो है यही नहीं बल्कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जैसे आर्ट हर चीज़ में होता है, विदाउट आर्ट, विदाउट कोई लकीर, कोई ड्राइंग करे। सर ये बताइए कि जो और भी स्कूल्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि जो बहुत अच्छा एक ज़रिया है बच्चों को मोटिवेट करने का और बगैर उनको पनिश करे के बगैर उनको जो है तालीम की तरफ मुतवज्जो कराने का एक बेहतरीन तरीक़ा है ये। हम चाहेंगे कि जो हमसे राब्ता पैदा करें और अपने स्कूल्स को अगर एनरोल करते हैं तो बच्चों के लिए 4 चांद लगने वाली बात है उनकी सलाहियत। सर अभी आप बताए थे आपसे रब पैदा करें तो किस तरह से रब पैदा करें? आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा कोई है या कहाँ पर कोई ऑफिस है या फेडरेशन की ऐसा कहाँ पर आके मिले, कोई स्कूल वाले आके मिलना चाह रहे हैं तो उसके हमारा सोशल मीडिया पे हमारा है। देखिए अब जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ MPSF मजलिस प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का और हमारे गाजिउद्दीन साहब प्रेसिडेंट है, अतीक साहब। ये स्कूल में से हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनसे आप किसी से भी रब्ता पैदा कर सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए जो है पिछले 4 साल से हमारा जो प्रोग्राम है काफ़ी जो है सर्कुलेट हो रहा है, लोग उसको जान रहे हैं
लेकिन डिस्टेंस की बिना पे हम कुछ लोग जो है सिकंदराबाद से भी आए थे, लेकिन हम उनको ट्रांसपोर्ट देना, उतनी दूर से बुलाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम ज़्यादातर फोकस जो है मंडल वाइज कर रहे हैं। चांदनार मंडल, बंडलागुड़ा मंडल और कुछ बहादुरपुरा मंडल के भी जो है स्कूल्स यहाँ पर है। और इस साल जो है हमारे सरूनगर मंडल के भी कुछ स्कूल्स यहाँ पर सर, कितने स्कूल्स आपके साथ जो जुड़े हैं अभी तक? कितने साल से ये इवेंट कर रहे हैं आप लोग आर्ट कंपटीशन? जैसा बताया कि मैं जो है हम लोग जो है एक साथ में ज़्यादा स्कूल्स को एनरोल करके क्वालिटी को ख़राब करना हमारा इंटेंशन नहीं है, बल्कि हम जो है एक 30 स्कूल्स का फोकस रह रहा है हर साल। 30 स्कूल्स को लेकर हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे इन स्कूलों से आए, 3000 से 5000 तक के बच्चे आए, तो जिसकी वजह से हम एट ए टाइम बिग टास्क लेकर फेल नहीं होना चाह रहे हैं। स्मॉल टास्क लेकर जो है उसको कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन मिल रहा है, स्कूल लीडर्स का भी जो है बेहतरीन ताउन मिल रहा है। वो लोग भी यहाँ पर ग्राउंड पर शामिल हैं, वो लोग भी जो हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। हम उनके लिए शुक्रगुजार है कि वो लोग अपने स्कूल के अंदर इस पैगाम को और इस इनिशिएटिव को लेकर जो है अपने स्कूल के कल्चर को तब्दील कर रहे हैं वो लोग। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।